इज यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है कि अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन कौन कौन यूज करता है। एज वी नो बिजनेसमैन इटसेल्फ, बिजनेसमैन खुद तो करता है लेकिन बिजनेसमैन के सिवा और भी लोग इसका यूज करते हैं। वो कौन है वो हम देखते हैं। सो आई हैव रिटन 12 पॉइंट्स ऑन दिस बोर्ड। ओके, आई हैव रिटन 12 पॉइंट्स। These 12 points we'll discuss one by one. So let's start very first, that is management. That is management. So our first user is what? Management. Now in general in company form, the real owners are who? It's shareholders. Shareholders are the real owners in the company, but management is done by board of directors. They manage the company, they take the decision, they decide the policy, and they decide all these rules, regulation, policy for what? To achieve predetermined goals. To achieve predetermined goals. So from this accounting information, they can decide whether they have achieved their predetermined goals or not, whether their decisions are correct or not. Okay. So for management, accounting is very useful. Okay. So here, that information can be obtained from accounts. Their function is to achieve predetermined goal through planning and control. मैनेजमेंट का काम क्या है? कंपनी के गोल अचीव करना है। कैसे? विथ प्रीडिटरमाइंड प्लानिंग एंड कंट्रोल। उनको उसके लिए पहले से प्लानिंग करना पड़ता है और बाकी सब चीज को कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन ये सब हो कब पाएगा? व्हेन दे प्रिपेयर अकाउंट्स और व्हेन दे हैव अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। Okay, now they identify variance by comparing plan estimate with actual result and they take corrective measure to avoid repetition of those kinds of variance in accounts. Variance means what? Difference. यानी कौन सा डिफरेंस? जो उनका प्लानिंग था, उनका जो गोल था और जो एक्चुअल रिजल्ट आया है, उन दोनों में क्या डिफरेंस आया है और क्यों आया है, तो इसके रीजन जानना है और इस रीजन को दूर करना है, वो है उसका काम। लेकिन मैनेजमेंट ये सब कब कर पाएगा? व्हेन मैनेजमेंट हैव अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सो आवर फर्स्ट यूजर इज व्हाट? मैनेजमेंट। ओके, नाउ accounts is the best tool of measure efficiency of management. Through accounts we can measure the efficiency of management, whether management is efficient or not. So to measure the efficiency of management, accounting information is also necessary. Now management can be classified as internal user. So management कौन सा user है? So there are two types of user, internal and accessory. Now management can be classified as internal user. So management कौन सा user है? So there are two types of user, internal as well as external. So management is internal user. So they can ask MCQ from this कि management is blank kind of user, so internal. Okay. Then thus accounts are very important for management. So in this way accounting information is very useful to the management. Okay, so this is the first user, that is management. Okay, now we discuss second, that is shareholders. Now who are shareholders? So as per legal provision, management has to send the certified copy of accounts to all these shareholders इन प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड। यानी कंपनी के रूल्स के हिसाब से मैनेजमेंट को अकाउंट्स की कॉपी उसके शेयर होल्डर्स को सेंड करनी है बिफोर प्रिस्क्राइब टाइम। ओके, नाउ क्यों शेयर होल्डर को सेंड करनी है? बिकॉज एज आई सेड शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द बिजनेस, दे मस्ट बी अवेयर अबाउट देयर बिजनेस इंफॉर्मेशन। ओके, देन it is right of shareholders to obtain a copy of accounts and at the same time it is duty of the company. ये शेयर होल्डर का राइट भी है और कंपनी का क्या है? ड्यूटी है। शेयर होल्डर का राइट क्या है? टू गेट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, और कंपनी की ड्यूटी क्या है? कंपनी की जो भी इंफॉर्मेशन है अकाउंटिंग वो शेयर होल्डर्स को देनी है। क्यों देनी है? क्योंकि शेयर होल्डर्स कौन है? कंपनी के ओनर्स है ना। देन shareholders analyze publish financial and non-financial information and undertake review of decision for their investment in the company. shareholders क्या करते हैं? shareholders इस information का क्या करते हैं? So through this information shareholder decide whether they have to invest this in this company or not. Okay, और इस कंपनी के शेयर बेच देने हैं कि इसमें कंटिन्यू करना है, या डिसीजन किसके ऊपर लेंगे? वो फ्रॉम द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विच इज गिवन बाय द मैनेजमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर. ओके, देन
they can learn about development and forecast the future of the company. Now from this information they can forecast about the company कि कंपनी फ्यूचर में कैसी रहेगी, कंपनी का प्रॉफिट फ्यूचर में कैसा रहेगा, कंपनी फ्यूचर में चलेगी कि नहीं चलेगी, कि बंद हो जाएगी, ये सब डिसीजन किसके ऊपर लेते हैं? थ्रू दिस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. Now they may decide either to dispose of or to retain the shares of the company on the basis of this information. यानी इस इंफॉर्मेशन के ऊपर से डिसाइड करते हैं कि कंपनी के शेयर बेच देने हैं, इस कंपनी से निकल जाना है, कि इस कंपनी में हमें रिटेन करना है, रिटेन है इसी कंपनी के शेयर के साथ में आगे जाना है. तो ये सारे डिसीजन शेयर होल्डर्स कब ले सकते हैं? व्हेन शेयर होल्डर्स हैव दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन. सो शेयर होल्डर्स आर आल्सो द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. ओके, नाउ थर्ड वन, दैट इज पोटेंशियल शेयर होल्डर्स. ना पोटेंशियल शेयर होल्डर्स मींस व्हाट? पोटेंशियल है अभी इन लोगों ने कंपनी के शेयर परचेस नहीं किए हैं, अभी इन लोगों ने कंपनी के शेयर परचेस नहीं किए, लेकिन वो कर सकते हैं. Now this category of shareholders decide to buy shares of the company after investing in the company to decide whether they will expect a return or not. They are accounting information of the कंपनी. यानी कि वो लोग सोचेंगे कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, किसके बिहाफ पे सोचेंगे, ये डिसीजन किसके बिहाफ पे लेंगे. सो फ्रॉम दिस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दे विल डिसाइड दे विल इन्वेस्ट इन दिस कंपनी और नॉट. ओके, सो फॉर पोटेंशियल शेयरहोल्डर्स आल्सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट. यानी कि वो देखना चाहते हैं कि इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और ये डिसीजन वो किसके ऊपर लेंगे? फ्रॉम दिस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. नाउ फोर्थ वन इज व्हाट? क्रेडिटर्स. नाउ हु आर क्रेडिटर्स? सो क्रेडिटर्स आर दोस पर्सन हु सप्लाई गुड्स टू द बिजनेस. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म पीरियड एंड लॉन्ग टर्म पीरियड. शॉर्ट टर्म पीरियड मींस व्हाट? दोस पर्सन हु आर सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज टू द कंपनी ऑन credit basis. And second one is long term. Long term is what? Banks, financial institution, okay, debenture holders, all these are also creditors of the company because they give credit to the company. Now when they decide to continue to give credit to the company, when company is making profit, when company is making profit, okay, so these parties have to collect their dues in future from the company, and these parties use published account to know the present and future earning capacity and economic condition of the company. तो ये लोग भी सोचेंगे कि इन्होंने क्रेडिट में गुड्स दिया है, मान लो कंपनी कल जाके लॉस करती है और कंपनी कल जाके शट डाउन हो जाएगी, तो उनको पैसा कहां से मिलेगा? तो ये देखना चाहते हैं फ्रॉम दिस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन what is the future of the company, what is the future financial condition of the company, what is the future market of the company. Okay, from the past accounting information. मान लो कोई एक्स कंपनी है, उसका पिछले 10 साल से रिकॉर्ड कैसा है कि हर साल प्रॉफिट इंक्रीज होता है, तो इससे हम क्या फोरकास्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में भी इस कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज होगा, है ना. लेकिन मान लो कंपनी का प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, तो हम क्या फोरकास्टिंग कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में कंपनी का प्रॉफिट क्या होगा? डिक्रीज होगा. तो अभी इस कंपनी में हमें पैसा देना चाहिए नहीं, किसमें? जिसमें प्रॉफिट हर साल क्या होता है? डिक्रीज. लेकिन मान लो प्रॉफिट इंक्रीज होता है हर साल, तो हम उस कंपनी को अपनी क्रेडिट देंगे. क्रेडिट देंगे ना, क्रेडिट में गुड्स एंड सर्विस देंगे. ओके, सो for creditors also this accounting information is useful. Now next one is what? Employees. Now why employees needs accounting information? So from accounts of company, the employees of the company acquire the information about their salary improvement, bonus, commission and job safety. एम्प्लॉइज को पता कब चलेगा कि उनको इंक्रीमेंट अच्छा मिलेगा, उनको बोनस मिलेगा, उनका फ्यूचर का जॉब सेफ्टी है, यानी उसकी जॉब फ्यूचर में जाने वाली नहीं है. तो थ्रू अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. हाउ? अगर कंपनी का प्रॉफिट अच्छा होगा तो एम्प्लॉइज क्या करेगा? इंक्रीमेंट के लिए डिमांड करेगा, बोनस के लिए डिमांड करेगा, और वो सोचेगा कि मेरा जॉब सिक्योर है यहाँ पे, कि कंपनी अच्छी है, प्रॉफिट कर रही है, बंद होने वाली नहीं है. लेकिन एम्प्लॉइज ये सब डिसीजन कब लेते हैं? फ्रॉम दी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. थ्रू अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दे आर अवेयर अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी एंड दे कैन टेक देयर डिसीजन रिगार्डिंग देयर जॉब. ओके, सो for employees also accounting information is useful. Now next is tax authorities. Now tax authorities means what? As we know, we have to pay tax to the government, है ना. If we are doing business in
India and if we are making profit. Now how? So different types of taxes are collected by the government in the country, keeping in mind business income, activities of business and other factors. Now to collect their taxes in the budget of every year, government makes provisions. गवर्नमेंट हर साल अपने बजट में प्रोविजन करती है कि कितना टैक्स किससे कितना लेना है, उसके रेट ऑफ परसेंटेज होते हैं कि हर साल हमें इस बिजनेस से कितना परसेंट टैक्स लेना है, इससे कितना लेना है, वो हर साल गवर्नमेंट डिसाइड करती है. ओके, देन ऑन द बेस ऑफ दिस प्रोविजन टैक्सेस आर पेड बाय द बिजनेस एंटरप्राइज और कंपनीज एंड टैक्स पेमेंट लायबिलिटीज डिटरमाइंड फ्रॉम अकाउंट. सो इसके हिसाब से कंपनी डिसाइड करती है कि हमें कितना टैक्स गवर्नमेंट को देना है फ्रॉम दिस टैक्स रेट प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट. और कंपनी कब डिसाइड करेंगी कि हमें कितना टैक्स देना है, और गवर्नमेंट को पता कब चलेगा कि हमें इस कंपनी से टैक्स इतना लेना है, फ्रॉम ओनली प्रॉफिट. और हमें प्रॉफिट कहां से मिलेगा? ओनली अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से, है ना. अगर हमको पता ही नहीं कि हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे हमें इतना टैक्स देना है, और गवर्नमेंट भी कैसे डिसाइड करेगी हमें इससे इतना टैक्स लेना है विदाउट नोइंग प्रॉफिट. सो टू नो प्रॉफिट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट. नाउ देन accounts prepared and taxes paid whether are prepaid or paid as per budgetary provision or not is checked by the tax authorities. हमने जो अकाउंट्स बनाए हैं वो सही तरह से बनाए कि नहीं बनाए, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए कि नहीं किए, वो सब टैक्स ऑथोरिटीज चेक करती है. टैक्स ऑथोरिटीज यानी जो टैक्स कलेक्ट करती है, और जनरली इंडिया में कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम टैक्स कलेक्ट करती है. देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस बट आई टेक इनकम टैक्स. तो इनकम टैक्स कौन लेता है इंडिया में? सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, सो सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि किससे कितना टैक्स हमें लेना है फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन. एंड फॉर दिस पर्पस अकाउंट्स आर यूज्ड बाय दी टैक्स ऑथोरिटीज. और इसकी वजह से हमारे अकाउंट्स टैक्स ऑथोरिटीज यूज करती है कि किससे कितना हमें टैक्स कलेक्ट करना है. सो फॉर टैक्स ऑथोरिटीज ऑल्सो आवर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज यूजफुल. नाउ नेक्स्ट इज कस्टमर्स. नाउ व्हाट कस्टमर्स? So customer is what? The persons who purchase our goods and services. Now, customers of business can be considered one of the significant component of profit making. Generally हम अपना प्रॉफिट कहाँ से अर्न करते हैं? From customers. हम अपने goods and service customers को क्या करते हैं और वो लोग परचेज करते हैं और उससे हम क्या करते हैं? प्रॉफिट अर्न करते हैं. But existing market is not the market of seller, but it is the market of buyer. अभी का मार्केट कैसा है? सेलर का मार्केट नहीं है, बायर का मार्केट है. यानी कि हमें बायर को देख के चलना पड़ेगा कि बायर को क्या चाहिए, कैसा चाहिए, किस प्राइस में चाहिए, कैसी क्वालिटी चाहिए, कितनी क्वांटिटी चाहिए, ये हमें सब ध्यान में रख के अपना प्रोडक्ट बनाना पड़ता है. बिकॉज करंट मार्केट इज नॉट सेलर मार्केट बट इट इज अ बायर मार्केट. देन फॉर बायर मीन्स द कस्टमर्स वेरियस एक्ट्स आर प्रिवेलिंग. हम जानते हैं कि आजकल कस्टमर्स के लिए बहुत सारे एक्ट है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं, है ना, तो हमें वो भी ध्यान में रखना है. Then they are fully aware of their rights for purchase product. और वो कस्टमर्स को सब पता है कि कौन कौन से राइट्स अवेलेबल है प्रोडक्ट के लिए, तो हम उसको चीट भी कर सकते नहीं है. Then they are also aware of price of product and services. उनको सभी चीज का भी प्राइस पता है, सभी गुड्स एंड सर्विस का भी प्राइस पता है. मान लो हम कोई प्रोडक्ट परचेस करने जाते हैं तो हमको पहले से पता है उसका प्राइस क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है ना. सो कस्टमर्स आर नाउ अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स, दैट इज प्राइस एंड सर्विसेज. सो कस्टमर्स कैन गेट आइडिया अबाउट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम अकाउंट्स ऑफ द कंपनी. सो कस्टमर्स भी हमारे गुड्स एंड सर्विस प्राइस एंड क्वांटिटी क्या है वो सब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को पता चलता है. कस्टमर्स. ओके, नाउ 8.1 दैट इज फॉरेन एंटरप्रेन्योर. Now what is entrepreneur? So entrepreneur is what? Who invent new thing in the market. उसको क्या बोलते हैं हम? Entrepreneur. Okay. Now foreign means entrepreneur कहाँ का है? Foreign का है, यानी हमारी कंट्री से है नहीं. तो हमारी कंट्री में कब कोई पैसा इन्वेस्ट करेगा और हमारी कंट्री में हमारी कंपनी में कोई पैसा कब इन्वेस्ट करेगा? So when he is aware about our profit and loss. Now when he will be aware about our profit and loss? When he has our accounting इंफॉर्मेशन, है ना, कि भाई उसको मान लो कि हमारी कंट्री में हमारी कंपनी से बिजनेस करना है तो हमारी कंपनी कैसी है, क्या प्रोड्यूस करती है, उसका प्रॉफिट रेशियो क्या है ना, उसकी एसेट्स कितनी है, उसकी लायबिलिटीज कितनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन उनको कहां से मिलेगी? थ्रू अकाउंट्स. एंड
they are interested to undertake amalgamation with the company of other country. Amalgamation means what? उनको मर्ज करना है, उनकी कंपनी को हमारी कंपनी साथ इंडिया के अंदर, है ना. Then before execution of the kinds of decision, they examine the aspect like solvency, liquidity and profitability. वो ये सब देखना चाहेगा कि कंपनी की लिक्विडिटी कितनी है, कंपनी की सॉल्वेंसी कितनी है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, और ये सारी इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी हमें? दिस अकाउंट से, है ना. दैट इज व्हाई फॉरेन एंटरप्रेन्योर आर आल्सो यूजिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. ओके ओके. नाउ नेक्स्ट, दैट इज 9th one, regulatory bodies. Now what is regulatory bodies? So a company form a business is controlled either by the government or by regulatory bodies formed by the government. हमारे इंडिया में जो कंपनी बिजनेस करती है उसको कंट्रोल कौन करता है? तो गवर्नमेंट करती है या कोई रेगुलेटरी बॉडीज विच आर एस्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट. ओके. देन so that a general public will not have any kind of financial loss due to any steps or activities of the company. इस वजह से हमारे लोग, हमारी पब्लिक को कोई लॉस ना जाए. कैसा लॉस ना जाए? जिन्होंने उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है. किसकी वजह से? उस कंपनी की वजह से. उस कंपनी की कोई एक्टिविटीज और कंपनी का कोई ऐसा स्टेप जिससे पब्लिक को लॉस ना हो, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है? कुछ रेगुलेटरी बॉडीज एस्टैब्लिश करती है ना. देन फॉर दिस पर्पस सेबी, एक है सेबी और दूसरी है ईडा. These are two regulatory bodies. I have given two examples. SEBI means what? Securities and Exchange Board of India. Securities and Exchange Board of India. ये जितनी भी कंपनीज है ना, उसके जो शेयर्स होते हैं, उसका जो डीलिंग होता है ना, बाइंग एंड सेलिंग, स्टॉक मार्केट, उसको कंट्रोल करती है. सेबी किसको कंट्रोल करती है? स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करती है. यानी वो क्या है? रेगुलेटरी बॉडीज. उसी तरह क्या है? ईडा है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. यानी इंडिया में जितने भी इंश्योरेंस के बिजनेस है ना, उस सबको कंट्रोल कौन करता है? ईडा. अगर आपको इंडिया में इंश्योरेंस का बिजनेस करना है तो आपको इससे परमिशन लेनी पड़ेगी. जिस क्या है? ईडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. और अगर आपको इंडिया में कोई कंपनी एस्टैब्लिश करनी है और आपको उसके लिए शेयर इश्यू करने हैं तो किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी? सेबी की. सेबी यानी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये दोनों क्या है? रेगुलेटरी बॉडीज. ओके. तो उनको भी हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए कि हमारा बिजनेस कैसा है, हमारा पास्ट रिकॉर्ड कैसा है, हम प्रॉफिट करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना. हर एक कंपनी को सेबी परमिशन देती नहीं है शेयर इश्यू करने के लिए. सेबी उससे पहले उसका इन्वेस्टिगेशन करती है कि उसका बिजनेस क्या है, उसका प्रॉफिट मेकिंग रेशियो क्या है, और सब देखने के बाद सेबी परमिशन देती है. तो दैट इज व्हाट? रेगुलेटरी बॉडीज. ओके. Then next is what? Professional bodies. Now what is professional bodies? So they are doing accounting as a profession. उसके लिए accounting क्या है? Profession है. जैसे मैं आपको बोलूं ICAI, ये क्या है? ICAI Institute of Chartered Accountant of India. ये इंडिया में क्या करता है? अकाउंटिंग को कंट्रोल करता है. ICAI. Okay. So accounts prepared are known as professional. Accounting is a profession for the fair management of professional. Each country has professional bodies. Now from 1949, कब से? From 1949. Remember this. From 1949, the Institute of Chartered Accountant of India is functioning for accounting profession in this country. So हमारे कंट्री में ICAI from 1949 is performing प्रोफेशनल अकाउंटिंग, है ना. सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ अकाउंट दिस बॉडी प्रिपेयर्स गाइडलाइंस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. तो इसका काम क्या है? आईसीए का काम क्या है? गाइडलाइंस बनाना और उसके स्टैंडर्ड करना, यानी उसके स्टैंडर्ड मेंटेन करना. इंडिया के अंदर उसकी गाइडलाइंस बनानी है और उसके स्टैंडर्ड क्या करना है? उसको मेंटेन करना है. किसको? आईसीआई का. ठीक है. Then, in addition to this, Institute of Chartered Secretary of India and the Institute of Cost Accountant of India also render necessary suggestion. इसके सिवा और दो एजेंसी है जो इसके जैसा ही काम करती है. कौन कौन सी है वो? तो एक मैंने बोला चार्टर्ड सेक्रेटरी ऑफ इंडिया एंड दूसरा है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट.
इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट एंड अकाउंटेंट चार्टर्ड सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। ये दोनों और प्रोफेशनल बॉडीज है जो अकाउंट्स को क्या करती है, इंडिया के अंदर कंट्रोल करती है। तो दे आर नोन फॉर प्रोफेशनल बॉडीज। नाउ नेक्स्ट है रिसर्चर्स एंड एनालिस्ट। अब रिसर्चर एनालिस्ट है क्या, वो कोई कंपनी नहीं है, वो कोई बिजनेस नहीं करते हैं, लेकिन उनका काम क्या है, जो दूसरी कंपनी बिजनेस करती है उनके अकाउंट का रिसर्च करना है और उसका एनालिसिस करना है, और जिसको वो इंफॉर्मेशन चाहिए उनको टाइम पे देना है, उसको बोलते हैं रिसर्चर्स एंड एनालिस्ट। अगर हम बोले तो इसमें है क्रिसिल है, सिबिल है, इकरा है ना, ये सब क्या है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, क्रिसिल, सिबिल सॉरी एंड इकरा। सो इनका काम क्या है, सभी कंपनी की क्रेडिट चेक करना है और उसके बाद उसको वो लोग क्या करते हैं, रेट देते हैं कि इस कंपनी की रेटिंग इतनी है, इस कंपनी की रेटिंग इतनी है। जैसे जैसे किसी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग इंक्रीज होती है तो इसका मतलब क्या है, उसका इकोनॉमिक कंडीशन कैसा है, साउंड है ना। और जब ये लोग डिक्रीज करते हैं तो समझ जाना है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है। तो ये लोग रिसर्च करने के लिए और एनालिसिस करने के लिए उनको भी इंफॉर्मेशन चाहिए। कौन सी इंफॉर्मेशन है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। विदाउट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दे कैन नॉट डू रिसर्च एंड एनालिसिस। सो for these people also accounting information is important. Okay, then last one is what, government. गवर्नमेंट को क्यों चाहिए, तो मैंने आपको बोल दिया पहले भी, गवर्नमेंट को क्यों चाहिए, एक तो टैक्स कलेक्ट करने के लिए, कितना टैक्स किससे लेना है, and it is the responsibility of government to bring efficient and effective management in the country. The government forms policies for the development of the country and for the formation of policy relevant information is required. हमारे इंडिया में हमारी पॉलिसी कौन डिसाइड करता है, गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे डिसाइड करेगा, ऑन द बेस ऑफ इंफॉर्मेशन। विच इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। यानी कैसी पॉलिसी बनानी है, किस बिजनेस के लिए कैसी पॉलिसी बनानी है, किसको ज्यादा बेनिफिट देना है, किसको बेनिफिट नहीं देना है, किसको टैक्स बेनिफिट देना है, किसको टैक्स बेनिफिट नहीं देना है ना। तो ये सब डिसीजन गवर्नमेंट कैसे लेती है, फ्रॉम दिस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। And the information presented by the companies is collected and it is used in formulation of national policy. यानी कंपनी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देती है ना, उसके बिहाफ पे गवर्नमेंट क्या करती है, पॉलिसी डिसाइड करती है। जो कंपनी इंफॉर्मेशन देती है ना, कौन सी इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, उसके बिहाफ पे गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी पॉलिसी डिसाइड करती है। एंड this accounting information play a important role in policy oriented decision of the government. Accounting information गवर्नमेंट को पॉलिसी डिसाइड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। So government also required our accounting information. Our accounting information is what? Business accounting information. Okay. So all these are what? Users of accounting information. Okay. So we have discussed users of accounting information. So these are the 12 users of accounting information. Okay, so write down these 12 points in your notebooks and explanation of these points is given in your textbook. You can also see your textbook for details of the point. Okay, so today we have discussed users of accounting information. Okay, so thank you and have a nice day.